So Institution Innovation Council, Ministry of HRD initiative presents Rungta Leadership Talk Series. So this is a outreach from the Institution Innovation Council to reach out to young boys and girls who are not aware of the situation which might occur in future or as in the present current circumstances because of the lockdown. So what we are trying to do is bring in stakeholders from all parts of the society. They might be people from media, they might be people from the bureaucracy, politicians, educationists, scientists, and you name it. We want them to be on this platform, speak to the children, try to let the students, teachers, parents who have logged in understand what is the perspective of each stakeholder. It might be different. There might be different perspectives from different people, but that is the beauty of a democracy, and also that's the beauty of the difference of ideologies, perceptions, ideas, innovations of different people from different parts of the society. So this is the major aim of this Rungta Leadership Talk Series. I am Dr. Jawahar Surisetti. I am trying to understand from the perspective of youth because my interaction with the youth is very large. I meet around a lakh of young boys and girls from different parts of the world, and these people are brimming with confidence most of the time. But in these pandemic times, I am seeing a slight loss of energy where there is no point. So we will talk on these issues and some more which you can post on your chat boxes and we'll take them from time to time. It's a freewheeling chat. There is no formal talk that is going on. Mr. Raghuraman is a very learned man. He is a thinker and he has a different viewpoint which is highly positive, highly contagious, and he is also a part of the media, so he has a different viewpoint when you can see him on his columns every morning. That face is very familiar, and we are looking at the world from a different angle, and that is how we think that when we keep talking to people, we start gaining knowledge and we start gaining a lot of different perspectives, which is important from young boys and girls at this age. So we will interact, and it's a freewheeling interview. So I will also be sharing some of my views. Mr. Raghuraman is the keynote speaker in today's chat. So his ideas remain prime. I will take a back seat, but I will try and get the best out of him because he is the best. It's only that somebody needs to get things out of him, and that is what I am going to do for today. That is my role. I would like to introduce Mr. N. Raghuraman. He is a columnist. He is a management guru. He is a thinker. He thinks about various issues that are happening in the society. You might be reading his column every day, Management Funda in Dainik Bhaskar, the leading Hindi daily in the country and probably leading in the world also. And you can see that face with a smile. I have not seen that smile go. Whether there is COVID-19 or no COVID-19, I have not seen that happen. So that smile is probably an indicator of the positivity behind that person, that persona, that personality. And he is a postgraduate from Mumbai University and an IIT SOM, School of Management, Mumbai alumnus. A journalist with 30 years of experience with you name the dailies, he is there. And he is more than that, the connect with the audience when he is in front of them. Usually I have not seen this happen. A person who writes well might not be as good in speaking, but when he speaks, he is simple,
but he is to the point. He has stories to tell to us, which we might encounter in the day to day, and these are experiences, real life experiences, which are missing from the youth of today, and these are what make him a fantastic speaker. So from the institution's Innovation Council, a Ministry of HRD initiative presents Rungta Leadership Talk Series and the Rungta Group of Institutions. I welcome Mr. Raghuraman sir. Sir, can I see you on the screen? Good evening. Yeah. Very good evening. Very good evening. Sir, we will keep it very informal as we had discussed. The greatness of this man is that when I said that it might not be, maybe some questions could be put, he said, no, we'll take it as it comes. So the openness of mind for youth is exemplified by Sri N. Raghuraman, because he keeps an open mind when he answers. So the questions are not like bullets that I should escape. He takes them head on, and we are looking to do that today. So, sir, how is Mumbai today? Mumbai is pouring, absolutely pouring, and non-stop from morning. In fact, yesterday, the whole night it poured, and from this morning until now, you can hear, some of the raindrops trickling into my balcony shutters, and Okay. it's pouring. And Mumbai is anyway close. It's pouring. So, yeah. So rain is falling. Jama jam jam. Jama jam jam. That's true. Jama jam jam. Okay. Mumbai rains, because I've stayed there for 12 years. Incessant rains at least disturb the trains for a day or two. But today there are no crowds, I suppose. Yeah, there are no trains, so obviously there are no crowds. I went out, so there are no trains for the last 100 over days. There are no local trains in Mumbai. So the Mumbai, by and large, has come to a standstill, and it doesn't look like Mumbai and the city that doesn't sleep. Yeah. So it's for the last 100 days it's sleeping. Sir, let's start with this only, that Mumbai is infected badly, Delhi is infected badly, Bangalore, Chennai, Pune. So these are all the cities where usually youth go for their higher education. So what do you see in this case of infection? The days are now probably, see, I tell you, अगर मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बोल लेता हूँ आपके साथ में, चाहिए सर, यस बिल्कुल। क्या है कि वो गुरु पूर्णिमा कल है, और गुरु पूर्णिमा में सबसे बड़ा गुरु होता है वो समय होता है। और महाभारत की जो कहानी जो हम लोगों ने कुछ तकरीबन 98 हफ्ते 1988 से लेकर 1990 तक देखे थे, उसमें हर रविवार को समय आता है, और समय अपने आप को परिचय देता है और कहता है कि मैं गुरु हूँ, मैं माँ हूँ, मैं एक ऋषि हूँ, और मैं हर एक करंट पर्सपेक्टिव को फ्यूचर के साथ जोड़कर उसकी कहानी को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो बात यह है कि समय हमको सिखा देता है कि हमें करना क्या चाहिए। एंड जैसे महाभारत में भीम ने अपनी रोल को चेंज किया था, कुक बन गया था, या अर्जुन अनुज बन गए थे अपने अज्ञातवास में। समय हम सब लोगों को अपना अपना रोल बदलने के लिए कह रहा है। अब वो रोल किस तरीके से बदलेगा, कौन उस पर सूट होगा, क्या नहीं सूट होगा, ये सारी चीजें प्रोबेबली हमें टाइम ही बताएगा। आपने पूछा बम्बई के बारे में, तो मैं बम्बई के बारे में निश्चित तौर से एक चीज कहना चाहता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर्स जिनके साथ मैं रूबरू होता हूँ पूरे देश में, विभिन्न प्रदेशों में जो रहते हैं, मेरे से ईमेल में बात करते हैं, मेरे से फोन पे बात करते हैं, या मेरे साथ वेबिनार में बात करते हैं। वो जो मोह था
बम्बई, दिल्ली, मद्रास, बेंगलुरु जाने का मोह था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। ओके। या जाहिर है क्योंकि ये सारे सिटीज कोरोना वायरस के पीक नंबर्स को बता रहे हैं, पॉइंट 1। और हम इनको दोषी भी नहीं ठहरा सकते क्योंकि इनके पास पर स्क्वायर मीटर में रहने के लिए जो जगह है वो बहुत कम है, रायपुर या और कोई शहर को हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो हाँ पर स्क्वायर फीट की जो एरिया कम होने के वजह से कोरोना वायरस की जो स्प्रेड हो रही है और उसके वजह से जो परेशानियां इस शहर में आनी पड़ रही है उसका एक अलग तरीका है उसको डील करने का। तो बाय एंड लार्ज अगर मोटे मोटे आपका जो सवाल है उसमें से अगर हम देखें तो दीज सिटीज हैव लॉस्ट देयर चार्म पोस्ट कोरोना वायरस। हो सकता है कि नए शहर भर के आएंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है जिसका नाम है स्मार्ट सिटीज। सो हो सकता है कि स्मार्ट सिटी कल इन बच्चे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा या बहुत बड़ा अट्रैक्शन होगा, ये दोनों कह सकते हैं आप। उनके लिए अट्रैक्शन होगा और गवर्नमेंट की और स्मार्ट सिटी के वरदान। सर ये आपने बात अच्छी उठाई। स्मार्ट सिटीज में 2 मेजर एस्पेक्ट्स जो गवर्नमेंट हैज टेकन आउट ऑफ द 10 इज हेल्थ एंड एजुकेशन। हाँ, अगर ये सुरक्षित रहें, सेफ रहें और इनको अच्छी शिक्षा अगर इन स्मार्ट सिटीज में इकोसिस्टम तैयार किया जाए तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो पॉसिबल है। हाँ, तो इट इज गुड दैट इट यानी कोरोना वायरस इक्वलाइजर है कि कुछ शहरों पे पक्षपात नहीं कर रहा है तो दुनिया को सब जगह बढ़ने का मौका दे रहा है, इसका मतलब। सही बात, बिल्कुल सही। यस यस यस। सर अब इसमें मान लीजिए हम पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो पेरेंट्स अभी घबराए हुए हैं कहीं पे भी बाहर भेजने के लिए, तो क्या इसका मतलब है कि रेसिडेंशियल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स इनके लिए 1 साल की तकलीफ है? सर देयर आर 2 वेज ऑफ लुकिंग एट इट। एक तो रेसिडेंशियल स्कूल के लिए तकलीफ जरूर, क्योंकि फिलहाल एक डर तो चला गया सबके पास लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं गया है। अब एक बात देखिए, अपन मार्च 28 तारीख को हम लोगों ने लॉकडाउन शुरू किया। मार्च 25 तारीख को हम उसको औपचारिक तौर पे कंप्लीट लॉकडाउन नेशन का हमने अनाउंस किया। तो जो डिजीज के बारे में जो डर है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड लास्ट मैच तक चला तो गया, लेकिन इस 4 महीने में हम सब लोगों को एक चीज सिखा है यार कि कहीं ना कहीं इसके साथ अपने को जीना पड़ेगा और अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है कि इसके साथ जीना पड़ेगा वो सबके पास अभी तक नहीं पहुंचा। तो जब तक पेरेंट्स के पास वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं पहुंचेगा तब तक तो लिव इन कॉलेजेस के लिए थोड़ी सी लिव इन मतलब जहां पे रेसिडेंशियल फैसिलिटीज है उस कॉलेज के लिए थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि पेरेंट्स को बच्चों को भेजना चाहिए, पॉइंट 1, और कॉलेज को बहुत सतर्क रहना चाहिए in terms of not even a single case of coronavirus gets reported. तो तभी वो मैच होगा बिटवीन पेरेंट्स के डर और उनके कॉन्फिडेंस को आप कंपेयर कर पाएंगे। ओके तो लेकिन ये कॉलेजेस और कैसे पहुंचाएं ये बात को, क्योंकि कोई निकल के आ नहीं रहा है। अब देखिए, एक बात तो अभी मान लिया कि जो आदमी घर में कमा रहा है वो तो उसने तो ये जान लिया यार मेरे को तो कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। अब ये तो का हो गया। अब उसने अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्टिव गियर्स पहनकर या प्रोटेक्टिव मेथोडोलॉजी को लेकर वो जा रहा है ये उसके ऊपर निर्भर है। मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि भाई आप हाथ धोए, ग्लव्स पहने, पीपीटी पहने या पीपीई पहने या मास्क पहने, ये मोटे मोटे तौर पर हम बोल सकते हैं। लेकिन पर्सनल हाइजीन स्टैंडर्ड जो मेंटेन करना चाहिए वो हर एक आदमी अपने अपने तरीके से सीखता है और वो मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगा। अगर वो चीज अगर पेरेंट्स के तौर पर और ब्रेड विनर के तौर पर अगर घर में शुरू हो गया, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके सबके पास फिर उनकी जो मिसेस रहेगी या हाउसवाइफ रहेगी
वो बाजार जाना शुरू कर देगी। वो अगर बाजार जाना शुरू कर देगी तो बच्चे नीचे खेलने जाना शुरू कर देंगे। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके सब चीज करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम दुनिया को बंद करके घर में बैठ सकते हैं, लेकिन हमें कोई मेथोडोलॉजी ढूंढनी पड़ेगी। तो ये जो डर है, ये तो, हाँ, ये तो रहेगा, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन बहुत वीक है। देखिए, एक चीज मैं बिल्कुल अच्छी तरह से मानता हूं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस डर को लास्ट मैन तक पहुंचाया, उसी तरीके से कॉन्फिडेंस को भी लास्ट मैन तक पहुंचाने का कोई रास्ता उनको ढूंढना पड़ेगा। उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया बाय अनाउंसिंग द लॉकडाउन। तो लॉकडाउन की वजह से आप रोड में किसी को भी जाके पूछिएगा, सबसे गरीब भिखारी को भी जाके पूछिएगा, उसको मालूम है कोरोना वायरस क्या है। तो अब उसको भी तो जाके रास्ते में खड़ा रहना पड़ेगा। आप तो बंबई में रहे हो सर, हर एक सिग्नल में कोई ना कोई आके आपकी ग्लास को नॉक करता था, कुछ मारता था। आज वो लोग भी गायब है, क्योंकि वो लोग डरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत पैसा है, वो लोग भूखे हैं, उनका प्रॉब्लम है, लेकिन वो बेचारे आ नहीं रहे क्योंकि उनको नहीं मालूम कि क्या होगा। सो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना अपना ही काम है, पढ़े लिखे लोगों का ही काम है, तो हम ही को बढ़ाना पड़ेगा। सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन यूथ को बताया कि कम्युनिकेशन जो गवर्नमेंट ने किया या किसी ने भी किया हो, कि लास्ट मैन तक ये बात पहुंचाई कि भाई ये चीज है, इससे आपको खतरा है। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन रिमेन्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन एनीबॉडीज लाइफ, वेदर इट इज ए यूथ, गवर्नमेंट और एजेड और एनीथिंग। तो अब इन यूथ में क्या ऐसा करना चाहिए कि व्हेन दे कम आउट दे आर एबल टू कम्युनिकेट बेटर, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। मैं इस बात को तो मैं बड़े अच्छी तरह से मानता हूँ कि क्योंकि मैं तो पूरी जिंदगी कम्युनिकेशन बिजनेस में ही निकाला हूँ। मेरे कॉलम सारे न्यूज़पेपर में ही छपते हैं। मैं टेलीविजन चैनल्स पे बात करता हूँ, डिबेट्स में रहता हूँ। तो मैं पूरी जिंदगी कम्युनिकेशन से ही पूरी जिंदगी निकाला हूँ। तो बच्चे लोगों से मेरा आग्रह ये है कि आप कोई भी भाषा की बात नहीं है। यू कैन बी इन इंग्लिश, यू कैन बी इन हिंदी, यू कैन बी इन योर मदर टंग, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। यू कैन बी इन योर छत्तीसगढ़ी भाषा ऑल्सो, इट डजंट मेक ए डिफरेंस। आप कोई भी भाषा ले लीजिएगा, लेकिन अपनी बात को सामने में रखने की आपकी जो कला है, उस कला को मास्टर करना पड़ेगा आपको किसी भी कीमत पे। वो कोई भी बात हो, बहुत ही प्रिमिटिव चीज हो, उससे मतलब नहीं है। बड़े बड़े लोग, मैं कई बार मिस्टर मुकेश अंबानी की मीटिंग भी अटेंड करने का मौका मिला है। अगर आप देखोगे कि मुकेश अंबानी किस प्रकार का सवाल करते हैं तो आप हैरान हो जाओगे। बहुत ही बेसिक और बहुत ही नॉर्मल सवाल करेंगे और बड़े बड़े साइंटिस्ट वहां पे रुक जाएंगे, करना क्या है समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ही फंडामेंटल चीजें पूछने की जो आदत होनी चाहिए, वो बच्चों को सीखना पड़ेगा। आप जवाहर साहब, आप जानते भी है कि यूएस या और कोई कंट्रीज में पढ़ाते कम हैं, लेकिन सवाल किस तरीके से पूछा जाना चाहिए ये सिखाते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सवाल पूछने के तरीके को कभी नहीं सिखाया जाता, और सवाल पूछने वालों को भी हम आइदर निंदा करते हैं या उसको डिस्करेज कर देते हैं। उसके वजह से बेचारा वो पूछता भी नहीं है। तो पहला चीज तो आप और मैं और कोई भी इंस्टीट्यूशन रहेगा, वो सारे इंस्टीट्यूशंस बच्चों को सवाल पूछने के तौर तरीके को समझाना पड़ेगा। लवली, बहुत ही सही है सर। इसमें जैसे हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में है, मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट का होता है कि 70% स्कूल्स गवर्नमेंट के हैं, 50% हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के हैं। तो इनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस आएंगे कि आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग रखा और बच्चे बहुत हैं, तो हाउ डू दे मीट दिस चैलेंजेस, क्योंकि उनके पास बहुत सारे संसाधन नहीं है। तो कुछ आइडियाज हैं सर? फिलहाल तो आपने अचानक ये सवाल पूछ लिया। फिलहाल वैसे तो कोई आइडियाज नहीं है, लेकिन एक चीज पक्का है सर, मैं 2-3 जगह से मैंने एक आधा चीज सीखा हूं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। केरला में एक, मुझे याद नहीं आ रहा है वो पंचायत,
उस पंचायत को मालूम था कि उनके पास तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स है जो स्मार्टफोन खरीदने के लायक नहीं रहेंगे, तो और उन्हें हम ऑनलाइन क्लासेस ले नहीं पाएंगे उनके पंचायत में। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने मास प्रोडक्शन किया मास्क का। वो पूरा पंचायत ने मास प्रोडक्शन किया मास्क का, और उस मास्क को तकरीबन 13 लाख रुपए में बेचा। और उस 13 लाख रुपए में उन लोगों ने 3000 की 3500 कुछ स्मार्टफोन मिलता है गरीब लोगों के लिए नॉर्मल तौर पर, 3500 चार के अंदर तो पक्का आ ही जाता है। वो 4000 रुपए के अंदर के स्मार्टफोन को खरीदकर उस 1000 स्टूडेंट्स पे उन लोगों ने बांटा है। अब ये होती है आपके गॉडफादर, यानी कि आपकी पंचायत हो, आपकी म्युनिसिपैलिटी हो, आपकी गवर्नमेंट स्कूल हो, आप लोग कैसे प्लान करते हो। अब उसका विपरीत आप देखिएगा पूना में एक टाटा का चेयरमैन है, टाटा का नॉट चेयरमैन, टाटा का एक जनरल मैनेजर था जो रिटायर हुआ। उसने देखा कि पूना के म्युनिसिपल जिला परिषद स्कूल में ये प्रॉब्लम आने वाला है कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पाएंगे। तो उसने अपनी सोसाइटी से शुरू किया, लोगों को कंप्यूटर जो ओल्ड वाला है उसको डोनेट करने को कहा, ई वेस्ट कलेक्ट। उस ई वेस्ट को उसने रिपेयर किया, और वो सिंगल आदमी ने तकरीबन 900 कंप्यूटर्स आज तक तैयार कर लिया। अब बात क्या आती है कि एक आदमी अगर 900 कंप्यूटर को दान कर सकता है, और वर्केबल कंप्यूटर, वो भी वर्केबल कंप्यूटर को दान कर सकता है, तो हमें इस प्रकार से प्लान करना पड़ेगा। उसका आइडिया को देखकर एक जिला परिषद स्कूल पूना में क्या किया, उसने फेसबुक और व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजा कि हमारे यहाँ सारे के सारे जिला परिषद फार्मर के बच्चे हैं, इन्होंने कभी जिंदगी में स्मार्टफोन नहीं देखा, और आप डोनेट करेंगे तो अच्छा। तो पिछले सैटरडे या संडे को ये बात हुई, और एक हफ्ते के अंदर उनके पास तकरीबन 114 या 115 ई गैजेट्स आना शुरू हो गया, who people have donated. क्वेश्चन इज दैट आपको अपने अपने तरीके से इसको लड़ना पड़ेगा। आपका ज्योग्राफी कैसा है मैं नहीं जानता, ज्योग्राफी के मुताबिक वो सूट होती है क्या करना चाहिए, और उस ज्योग्राफी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। क्या बात है सर, मेरे भी 2 एग्जांपल्स थे यहाँ। हम लोगों ने कुछ अलग अलग स्टेट्स में किया है ये। एक तो है हमने रेडियो को यूज किया कि रेडियो लगा देते हैं हम लोग, रेडियो अवेलेबल रहता है गाँव में भी, तो रेडियो लगा के हम लोगों ने एड्यूताक्षरी खेला है सर। हाँ, एड्यूताक्षरी में हम जैसे एक गाना गाया, मोरे हिवड़ा में नाचे मोर, हाँ तथा थैया थैया, वहीं से एक कोई भी वर्ड ऑफ एनी सब्जेक्ट आप बताइए, उस वर्ड को सेंटेंस में यूज कीजिए, उसका डेफिनेशन दीजिए। फिर मान लीजिए येलोस्टोन पार्क बोला तो के से कोई गाना गाइए, गाना जहाँ खत्म होगा एक वर्ड। ऐसे हम लोगों ने रेडियो को यूज किया है। एक दूसरा एग्जाम्पल है सर, हम लोगों ने अभी, क्योंकि पिछले साल इलेक्शन के जस्ट पहले मोबाइल फोन बांटे गए थे, लेकिन वो बहुत ही स्मार्टफोन नहीं थे, तो हमने बोला है कि एसएमएस भेजिए, आपको जो चैप्टर चाहिए वो उसका साउंड बाइट आपके मोबाइल पे आ जाएगा, आप यूज करिए। तो देयर आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस हैपनिंग, लेकिन जैसे आपने कहा ना, उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा बाकियों को कि भाई यूज करो इस चीज को, कहीं हो रहा है इसका मतलब आप भी कर सकते हो। फैंटास्टिक, बहुत ही मजा आया सर, बहुत मजा आया। एक छोटी सी आइडिया है, मैं बहुत सालों से प्रमोट कर रहा हूँ। आपके जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर रमन सिंह, उनसे भी मेरी बात हुई थी। मैं चाहता हूं कि इस चीज को आप लोग आगे ले जाए। मैंने जब रमन सिंह साहब से बात किया, ऐसे बहुत सारे गांव हैं या ऐसे बहुत सारे छोटे शहर हैं जहां पे स्कूल के पहले सिनेमा थिएटर्स पहुंच गए, और सिनेमा थिएटर को अगर आप अक्सर देखोगे तो सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक या 11:30 बजे तक खाली रहता है, क्योंकि मॉर्निंग शो होने की परंपरा खत्म हो गई है। अगर हो भी रही है तो उसको हम नॉक ऑफ कर सकते हैं। क्या हम 7 से लेकर 11:30 बजे तक इन सिनेमा थिएटरों को क्या हम एक स्क्रीन वाला स्कूल कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट हमको टैक्स रिबेट दे सकता है? ये ऐसी सोच आनी चाहिए। ये मेरा आग्रह है आप लोगों से।
एकदम बिल्कुल सही है सर, ये हो सकता है। हाँ, मैंने इस बारे में बात की, आपने मुझसे शेयर की थी ये बात। हाँ। हाँ, तो मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि उसका यानी बहुत ही लेम था एक्सक्यूज, लेकिन था। हाँ, कि इसको रील बनाना पड़ेगा सर, मामला आजकल डिजिटल हो गया है, कोई रील वील बनती नहीं है आज की तारीख में। हाँ, तो वो मुझे दिया सिनेमा, गया है, बट इट इज पॉसिबल। इट हाँ इज पॉसिबल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यार, एक सिनेमा नहीं है जो रील में आ रही है, जो हाँ सारे। हाँ, नहीं, गांव गांव की बात कर रहे हो, लेकिन गांव में भी अगर चाहिए ना, मैं प्रोजेक्टर लगा के दिखा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। करेक्ट, हाँ, करेक्ट। तो आई थिंक दैट्स ए लेम एक्सक्यूज, बट वी शुड ट्राई। हाँ सर, इसके आगे अपन बढ़ते हैं। तो पेरेंट हुआ, स्टूडेंट हुआ, अब नाउ लेट्स गो टू टीचर्स। टीचर्स जो है, ऐसी हमारी भावना थी कि दे आर टेक्नोलॉजिकली नॉट एज इक्विप्ड एज द स्टूडेंट। स्टूडेंट हमको लगता है कि टेक्नोलॉजिकली आगे है, लेकिन कोविड जैसे ही आया, ये स्टूडेंट्स टीचर्स को चैलेंज फील हुआ, उन्होंने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जो भी उनकी क्षमता के हिसाब से। तो क्या ये प्रवृत्ति है कि अंटिल आई एम चैलेंज्ड, हाँ, या माई एग्जिस्टेंस इज चैलेंज्ड, तब तक मैं कोई चीज नहीं सीखूंगा, क्या ऐसी प्रवृत्ति है? ये मेरे ये तो मुझे पक्का लगता है, एज पर द टीचर्स आर कंसर्न साहब। मैं टीचर लोगों से बहुत बहुत बार मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप रोज एक क्लास लेते हो और पिछले 20 साल से ले रहे हो, आप मेरे को बताइए उसी बायोलॉजी को आप 20 साल से किसी को पढ़ा रहे हो, तो आप उस 20 साल से जो पढ़ा रहे हो, क्या उसको कभी ना कभी तो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अगर बिल्कुल। आप रिकॉर्ड कर देते और इत्तेफाक से उस दिन अगर आप क्लास में नहीं आ पाते, उस दिन का रिकॉर्ड को उठाकर आप प्ले भी कर देते तो बच्चे सुन लेते थे। बच्चे कभी क्लास को मिस नहीं करेंगे। आपकी कैजुअल लीव, सिक लीव जो भी है वो ले लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप 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 एक्चुअली उसको रिकॉर्ड करने इसलिए नहीं जाते हैं। मैं ये मेरा सोच है, हो सकता है मैं गलत हूं, और मैं गलत रहूंगा तो मैं खुश भी रहूंगा इस बात पे, कि मेरा सोच ये है कि बहुत सारे टीचर रिकॉर्ड इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है कि दिस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट देम। एक्चुअली पढ़ाई में यूज अगेंस्ट देम कैसा हो सकता है? हो सकता है कि आप थोड़ा सा कम अच्छा पढ़ा रहे, मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अच्छा तो पढ़ा ही रहे अपन। और कम और ज्यादा को तो एकदम सब्जेक्टिव है। वो कभी कोई चीज आपको अच्छी लग सकती है, कोई चीज मुझे अच्छी लग सकती है। जो अच्छा लगना जो वर्ड है वो सब्जेक्टिव है। तो उसमें इतना मारामारी, उसमें इतना डर क्यों? अगर टीचर एक सब्जेक्ट में मास्टर है तो उसको रिकॉर्ड करने में से तकलीफ क्या है, ये मैं पूछ रहा हूँ। वो तो रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, और उसको उसको इस तरीके से इंट्रानेट मींस कोई भी इंस्टीट्यूशन के इंट्रानेट पे डाल देना चाहिए, जहां से स्टूडेंट अपना क्रेडिट कार्ड या अपना कार्ड को स्वाइप किया और ड्रॉ किया उस क्लास को, जो क्लास वो अटेंड नहीं कर पाया। कभी कभी बच्चे भी घर लेते हैं, बिल्कुल बीमार होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो वो सीधा इंटरनेट से उठा सकते हैं उसको। तो इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है वो टीचर लोग नहीं ले रहे थे, और थैंक्स टू कोरोना वायरस अभी उसकी वजह से उनको लेना पड़ रहा है। और मेरे ख्याल से और भी आगे जाएंगे टीचर्स लोग, ये मेरा उम्मीद है। हाँ, नहीं, जाएंगे जाएंगे, अब तो क्या उनको खून लग गया है, तो दे विल डू इट। हाँ सर, वन मोर थिंग, कि लेट्स टेक दिस टू द टेक्नोलॉजी टीचर्स। हाँ, एंड इट्स नॉट अ वेरी गुड स्टेट ऑफ अफेयर्स इन जनरली मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो एआईसीटी अप्रूव्ड है। हाँ, कि जो टीचर्स हैं वहाँ पे, वो ज्यादा थियोरिटिकल होते हैं, और जबकि प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी जब आप सिखा रहे हो। तो क्या वी शुड लुक एट रिकॉग्नाइजिंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड? हाँ, कि ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दिया जाए जिनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, हम उसका हाफ लेते हैं एज एक्सपीरियंस, जबकि उसको डबल लेना चाहिए, वो ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड। हाँ, तो एक तो ये है सर, दूसरा ये है कि स्टूडेंट को लगता है जो मेरा टीचर पढ़ा रहा है वो किताब में है, हाँ, वो थियोरिटिकल है। हाँ, और जिसका एक्सपीरियंस मुझे लेना चाहिए वो मुझे इंडस्ट्री में मिल जाएगा जब मैं इंटर्नशिप में जाऊंगा, तो ही डज नॉट गो टू क्लासेस। तो क्या करना चाहिए? सर मैं आपको बताता हूँ। कल कल मैं अगर सुबह आप अगर फ्री रहेंगे तो मैं आपको मेरी एक क्लास में इनवाइट करता हूँ सर। जरूर। मैं आईआईटी का क्लास लेता हूँ संडे को, और हाँ। मेरी पीपीटी से मेरे बच्चे नफरत करते हैं। वो अच्छा। बोलते सर पीपीटी गोली मारिए, पीपीटी हमको दे दीजिए, हम देंगे उसको।
आप सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हमें नहीं चाहिए पीपीटी। वो प्रोटेस्ट करते हैं मेरे साथ में, पीपीटी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या? बहुत सिंपल है। जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास कहानी है, जिसके पास एग्जाम्पल्स है, जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, उस आदमी को थ्योरी पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। और वो बच्चे थ्योरी को सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि थ्योरी बुक में है, प्रैक्टिकल बुक्स में है, सब जगह पे है। वो नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि थ्योरी इज ओनली मेंट फॉर पासिंग योर एग्जाम। और बाकी जो प्रैक्टिकल कहानियां आती है, आपके ट्रिप में से आती है, मेरी फैक्ट्री विजिट्स में से आती है, किसी की सुपरविजन में से आती है, किसी की ट्रैवल में से आती है। सर आप मेरे कॉलम पढ़ते भी है तो आप देखिए ना सर, मैं क्या लिखता हूँ, मैं मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंसेस लिखता हूँ। उसी में से तो सीख मिलता है सर, उसी में सीख मिलता है। अब आप जब फिनिशिंग स्कूल जाते हो तो आपको ये सिखाया जाता है कि आप पहले लेडीज को आगे जाने दीजिएगा, आप पीछे जाइएगा। ये फिनिशिंग स्कूल सिखाता है। और हमारे रामायण में राम जब गंगा पार करने के लिए नाव को बुलाता है, वो पहले सीता माँ को चढ़ाता है, फिर बाद में चढ़ता है। अगर आप रामायण पढ़ लिए तो फिर फिनिशिंग स्कूल जाने की जरूरत क्या है? तो प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमने हमारी हर चीज की निंदा की है, और वो जो अंग्रेजी सूट पहन के आते हैं वो उनकी हमने बहुत तारीफ की है। हमें कोई जरूरत नहीं है उस अंग्रेजी की, उस कोट की, उस ब्रिटिशर्स ने कर दिया। अब तो ब्रिटिशर्स गए। 70 साल में हमारी हिस्ट्री को लेकर हम गर्व करें तो हमारे पास इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज है। महाभारत को आप कितनी भी बार पढ़ोगे, आपको हर एक बार एक नया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। वो आपको दिखाता है। कोविड टाइम्स और पांडव की एक्साइल, वो जो 14th ईयर का जो वनवास था, वो दोनों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई टीचर सब्जी बेच रहा है, कोई टीचर साइकिल का दुकान, अभी हाल ही में मैंने एक टीचर को देखा, वो साइकिल का दुकान लगा कर रहा है। वो अवतार बदला है भाई साहब, और कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या वो टीचिंग से भाग जाएगा? नहीं भागेगा, वो आएगा वहां। जब कोविड का सब सेटल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली द टीचर विल कम बैक, 100% ही विल कम बैक। लेकिन उस टीचर ने एक चीज जरूर सिखा दिया आपको कि बॉस, हारना नहीं, सुसाइड इज नॉट द ऑप्शन। आपको जीना है और जिंदगी से लड़ना है और आपको सक्सेसफुल होना है। तो ये जो सीख है टीचर्स 100% दे सकते हैं। और टीचर का एक सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोगों को था कि टीचर अपनी थ्योरी और प्रैक्टिकल के अलावा अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ सिखा के जाता था। मुझे मालूम कि वो आजकल के टीचर्स कितने अपनी बॉडी लैंग्वेज से सिखाते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे बचपन में, मेरे कॉलेजेस में, इवन IIT बॉम्बे में, मैंने कई बार देखा है कि जो टीचर्स की बॉडी लैंग्वेज जो सीखने को मिलती है वो शायद ही किसी थ्योरी बुक में रहती है। तो टीचर एक मल्टीफैसेड इंसान है। वो गुरु है एक तरफ से, स्टाइल स्टेटमेंट है दूसरे तरफ से, एक प्रकार का प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला है तीसरे तरफ से, चौथे तरफ से एक अननोन एक्साइटिंग पर्सन है जिसको हम पहचानते नहीं है। ऐसा 4 तरीके से वो अगर अपनी फैसेट को बदलकर अगर प्रेजेंट करना शुरू करेगा, स्टूडेंट विल स्टार्ट लविंग हिम और लविंग हर। इज नथिंग ग्रेट। और ये कोई भी टीचर कर सकता है, कोई भी टीचर कर सकता है। सर मेरे साथ ये आप जो कह रहे हैं अक्षरशः यही हुआ है। मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था कलकत्ता में, तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। हाँ, अंग्रेजी आती नहीं थी, होटल मैनेजमेंट कर रहा था। तो मैं बस में चढ़ा तो मेरे क्लासमेट्स थे, वो अच्छे घरों से थे, होटल मैनेजमेंट अच्छे लोग करते थे। तो उन्होंने मुझे चिढ़ाना शुरू किया। तो एक महिला उठी, छोटे बाल थे उसके, और उठ के उसने उन बच्चों को डांट के भगा दिया कि तुम क्यों चिढ़ा रहे हो, उसको अंग्रेजी नहीं आती। तो फिर उसने मुझे सहानुभूतिपूर्वक बात किया कि बेटा तुम सीखना चाहते हो क्या इंग्लिश? तो पार्क स्ट्रीट में मैं रहती हूँ, तुम डेली आ जाओ, आने जाने का खर्चा तुम्हारा, आई विल गिव यू 5 वर्ड्स, उसके मतलब बताऊंगी, उसको अगले दिन सेंटेंस में यूज करना, और अगर तुमने 5 को सही यूज किया तो ब्रेड बटर दूंगी मुझे। और जिंदगी की फाइट ब्रेड बटर की थी हमारी, तो आई टुक अप दैट चैलेंज। दैट लेडी, आज मैं उन्हीं से इंग्लिश, जो भी व्हाटएवर आई टॉक टुडे इज बिकॉज ऑफ दैट लेडी। हर नेम इज फ्लोरिंडा।
तो मैंने अपने स्पीकिंग ट्री कॉलम में ये लिखा था, 1 month 2 पिलग्रिमेजेस। जब मैं उनको 40-45 साल में खोजने निकला, टेलीग्राफ में एक ऐड दिया फ्रंट पेज में, वेर इज फ्लोरिंडा टीचर करके, मैं खो चुका था उनको। यानी पैसे के चक्कर में, मैं अपने करियर के चक्कर में उनको खो दिया था। बट आई फाउंड हर अगेन इन गोवा, एक ट्रेनिंग में मेरे, एंड आई एम हैप्पीली एसोसिएटेड विद हर। शी टॉट मी दिस थिंग इन अ बस। हाँ, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम एकदम सही कह रहे हैं सर। इसमें आई विल टेक वन मोर स्टेप अहेड कि हर चीज ऑनलाइन 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 हो रही है आज की तारीख में। तो is the future online, or do you see something else happening in future? See, it will become even more than online, 3D भी हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल चीजें, कॉलेजेस में जाना आना, फिजिकल कांटेक्ट रहना नहीं रहना, ये देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ सर। आज हम एक 25% स्टूडेंट्स को स्कूल में ऐसे लोगों को लेते हैं जो फिनेंशियली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहते हैं, ठीक है, और उनको बाकी लोगों के साथ रखने में, बाकी लोगों के साथ उनको एक ही बैच में, सेक्शन ए सेक्शन बी में रखने में थोड़ी बहुत हम लोग तकलीफ भी समझते हैं। मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ, बहुत सारे स्कूल को ये तकलीफ भी होती है। कोरोना वायरस ने एक आइडिया दे दिया साहब अपने को। अब जिसको प्रैक्टिकली आने का है वो एक्स फीस भर के हमारे स्कूल में आ जाओ, जिसको पैसा कम है वो घर में बैठकर उसी क्लास को पढ़ो, बीच बीच में आ जाओ। आपको भी कोरोना वायरस ने बहुत सारे ऑप्शन खोल के दे दिया, जिसके वजह से आप अगर कुछ 10,000 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो आप टेक्निकली 30,000 स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो। ये आपके पास वो फैसिलिटी आ गया है अभी, और आपको समझ में आ गया कि ये पढ़ा सकते हो आप। तो अगर आप कैमरा को देखकर पढ़ा सकते हो तो आप प्रैक्टिकली जब क्लास में पढ़ा रहे हो वही चीज कैमरा में जाएगा, और आपसे स्कूल में जितने लोग प्रेजेंट है उससे 300% मोर रिसीव करेंगे। तो क्या क्या खराब है बताइए ना आप मेरे को। बिल्कुल खराब नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। तो इसके माध्यम बदलेंगे। हो सकता है कि भाई स्कूल में आने वालों की संख्या X रहेगी, स्कूल में ना आने वालों की संख्या Y रहेगी, और उसको बाद में रिकॉर्डेड खरीदने वाले कुछ X+Y रहेगा। यू नेवर नो। हम जैसे हमारे जमाने में 21 क्वेश्चंस खरीदते थे एग्जाम के लिए, 21 क्वेश्चन। तो हो सकता है कि ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस है, दिस विल बिकम द 21 क्वेश्चंस ऑफ दैट एरा। ओके। तो सर, जहां जी प्लीज सर, मैंने शुरुआत में आपका इंट्रोडक्शन दिया था कि मैनेजमेंट फंडा में जो फोटो लगता है उसमें आप स्माइल करते रहते हो। वैसे ही जिंदगी में भी हमेशा स्माइल करते रहते हो। एक क्वेश्चन आया है किसी का कि हाउ डू यू कीप द स्माइल, एंड टेल अस हाउ वी कैन कीप आवर स्माइल्स। मैं अभी जवाहर साहब के साथ बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ उनके साथ बात कर रहा हूं। मेरे दिमाग में कुछ नहीं है कि 7 बजे मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या 6 बजे मैंने वो काम किया या नहीं किया। इफ यू स्टार्ट लिविंग प्रेजेंट ऑलवेज, यू हैव नथिंग टू लूज यार, यू हैव नथिंग। अपना प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हम बहुत सारा कीचड़ को डालकर, दिमाग में डालकर हम सोचते रहते हैं, उसके वजह से हम स्माइल को खो देते हैं। अभी क्या देखो ना, आप कहीं बैठे हो रायपुर में, मैं कहीं बैठा हूँ बंबई में, हम दोनों अपने आप को एक सवाल जवाब पूछ रहे हैं, मस्त मौला का गाना गा रहे, कर रहे, we are enjoying our presence in the computer today. So if you start enjoying what you are actually doing at this moment, then there is no need of worrying about the past or the future. क्योंकि past जो है उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, फ्यूचर का तो पता ही नहीं है, तो प्रेजेंट में जब है तो यार। बात सही है, लिविंग इन द प्रेजेंट। हाँ देखिए, ये मंत्र है, मंत्र इसको एक सेंटेंस में आप बोल सकते हो, लेकिन वो मुश्किल है करना। ये सर जो दिख रहा है ना अभी, वो गहराई ज्यादा है। सर इसमें एक चीज इन्होंने पूछा है कि मैं एग्जाम दिया, किसी और ने भी एग्जाम दिया 10th 12th बोर्ड का या कॉलेज का, और मैं बहुत अच्छा पढ़ा साल भर, लेकिन मुझे भी पास कर दिया गया, उसको भी पास कर दिया गया, तो मेरा डिमोटिवेशन हो गया, बोलता है बच्चा, आगे क्या करूं। नहीं,
क्या 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 डिमोटिवेशन हो गया? आप तो पास हो गए ना, अब इसमें डिमोटिवेट होने में क्या मतलब है? मिस आप किसके साथ कॉम्पीट कर रहे हो भाई साहब? आप अपने लिए बेंचमार्क रखे हो या आप दूसरों के सामने में बेंचमार्क करना चाहते हो? डीमोटिवेशन तब होता है जब आपने अपने लेवल पे क्या सोचा है वो अचीव नहीं किया। मुझे क्या लेना देना आपसे बताइए जवाहर साहब। आपके साथ मैं बैठा हूं, दोस्ती है, मैं कंप्यूटर में बात किया, आपने अगर 10 रुपया कमा लिया और मैंने 9 रुपया कमा लिया, समझ लीजिए, अब क्या है वो 1 रुपए के लिए मैं डिमोटिवेट हो जाऊं? कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि कल मेरा 11 हो जाएगा, आपका 8 हो जाए, क्या मालूम। Why we should get this numbers in between? आपको क्या कमाना था ये बताइए ना। आपको अगर 9 रुपया कमाना था और आपने 9 रुपया कमा लिया तो बी हैप्पी अबाउट इट। किसी और को 10 मिला, इस चक्कर पे क्यों पड़ते हो आप? तो आपकी लाइन बड़ा करना है या दूसरों की लाइन छोटी करनी है, ये सोचिए। सर एक कॉन्फ्लिक्ट किसी स्टूडेंट ने देखा है विद इन आवर इंटरव्यू, तो ही इज वेरी क्लियरली क्वेश्चनिंग इट। हाँ, और आपने कहा है कि क्वेश्चन करना चाहिए, तो एक बार ले लेते हैं इसको। सर, यू आर सेइंग टीचर्स शुड रिकॉर्ड देयर लेक्चर्स एंड पास ऑन टू स्टूडेंट्स, and now you are saying that PPT should not be there as practical understanding to students is best. I also fully agree, and we cannot pull all the experience in one PPT. Kindly clear. No. फिर इस मामले पे टीचर की रिकॉर्डिंग को इसीलिए रिकॉर्ड करना चाहिए टीचर की क्लासेस को, जब कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता है उसको मदद आ जाएगा जब वो इंटरनेट में जाके डाउनलोड कर लेगा। जहां पीपीटी का संबंध है, पीपीटी इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड थियोरेटिकली टू अपीयर इन द एग्जाम। लेकिन जब पीपीटी के साथ में एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस्ड आदमी या टीचर अपना एक्सपीरियंस को साथ में शेयर करता है, तो आपकी पीपीटी की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत बेहतर बनती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर। इसमें पिछले हफ्ते बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर एक सब्जेक्ट था। बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब उसमें बोले बॉस इसमें बताइए एकदम टिपिकल सिचुएशन क्या होता है। तो मैंने उनको एक एक्सपीरियंस बताया जो मैंने बिकाजी नाम की जो सेव वाले जो है बीकानेर में रहते हैं, उनके बोर्ड में मैं एक एडवाइजर था, अभी नहीं हूं। जब मैं एडवाइजर था तो मैंने एक काम किया था। क्या हुआ था कि वो बिकाजी वाले मुझे अपना सेव बेचते थे, तो हर महीना कोई सेव आता था, तो पुराना महीने का भी बच जाता था, ये महीने का नया आ गया, तो कभी कभी समझ भी नहीं आता था कि ये साला क्या करें इन सेव के साथ में। मैं नया सेव आता है उसको मैं खा लिया। अब खाया तो मुझे पता लगा यार इसमें सॉल्ट ज्यादा है। तो मेरा वाइफ ने बोला नहीं तुम पागल हो यार, तुम ऐसा कुछ नहीं है, पिछला वाला निकाल के देखो। पिछला वाला निकाल के देखा, उसमें सॉल्ट कम था। तो इमीडिएटली मैंने मिस्टर अग्रवाल को फोन किया, मैंने बोला यार ये बैच में सॉल्ट कम है, ये बैच में सॉल्ट ज्यादा है। तो उसने मेरे से चैलेंज किया, उसने बोला सर हो ही नहीं सकता, हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, हम एक बैच में इतना चीज डालेंगे, मतलब इतना चीजें डालेंगे, इससे ज्यादा डालेंगे ही नहीं। मैंने बोला मैं आपको 2 सैंपल वापस भेज रहा हूं, आप चेक करो। हमने चेक किया, पता चला सॉल्ट ज्यादा है। बोले कैसे हो गया? ये ऐसा हो गया, सॉल्ट प्रोक्यूरमेंट कंपनी जो है वो अलग थी, सॉल्ट उतना ही डाला था, लेकिन उसके सॉल्ट प्रोसीजर अलग था, इसके सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर अलग था। अगर ए के प्रोसीजर अलग है और बी के प्रोसीजर अलग है, और आपने ए के बदले में बी को यूज किया और उतना ही क्वांटिटी यूज किया, फिर भी आपका सॉल्ट बढ़ गया, तो इसको कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जो टयोटा करता है। ओके, नाउ बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक सब्जेक्ट है, उसको आप थियोरेटिकली समझा सकते हो। अब बिकाजी के साथ समझा दीजिए तो समझ अच्छी हो जाएगी। वाह क्या बात है। तो ये यानी एक नमक नमकीन ज्यादा था। हाँ, एक गुलजार के शब्दों में एक नमक नमकीन ज्यादा था, हाँ, एक पानी गीला ज्यादा था, ऐसा। सर इसमें कुछ इंजीनियर्स, कुछ एमबीए के बच्चे जो हैं फाइनल ईयर में हैं, वो बच्चों ने उनको प्लेसमेंट मिल गया। अब प्लेसमेंट मिलने के बाद अब कंपनीज ने उसको या तो डिले कर दिया या कैंसिल कर दिया। सो दे आर इन अ स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। तो क्या उनके लिए व्हाट डू यू सी अहेड इन द जॉब सिनेरियो?
सर आपको तो प्लेसमेंट मिला है और कैंसिल हुआ, लोगों का तो पूरे जो 10 साल की नौकरी है वो चले गई है, अगला महीना ईएमआई कैसे भरना है ये पता नहीं है, घर गिरवी रखा हुआ है, गाड़ी गिरवी रखा हुआ है, हर चीज ईएमआई में चल रहा है। उस आदमी का तो हालत देखिए सर, उसकी तो हालत खराब है। आप तो लकी हो, मिस आपके लिए तो कुछ नहीं बदला सर। मैं तो आपको कह रहा हूं कि स्टूडेंट के लिए नथिंग हैज चेंज्ड। चेंज हुआ है आपको और मुझे। फॉर द स्टूडेंट तो उसको कॉलेज में आना है, उसको सुनना है, उसको एग्जाम देना है, उसको अपने आप को आने वाले समय के लिए प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद उस चेंज एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट करने के तरीके सोचने हैं। अच्छी बात है कि आपकी नौकरी ईएमआई लाने के पहले ही निकल गई। बिल्कुल मैं कहूंगा इस बात को, लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, बात अलग है वो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप अभी प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि क्या करना चाहिए। आप जानते हो जो लड़का या लड़कियां इस दौर से गुजरती है वो एक लेवल स्मार्ट हो जाएंगे। वो क्या करेंगे मालूम है? जब अगली नौकरी मिलेगी उनको, वो 6 महीने की सैलरी को पहला जमा करके रख देंगे, क्योंकि उनको भी मालूम कि जब नौकरी जाएगी तो ये 6 महीना मेरे लिए ब्रिज कर देगा। वो उनके पिताजी सरीका, आपके सरीका, मेरे सरीका ईएमआई के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो मतलब कौन स्मार्ट है? वो स्मार्ट है कि आप स्मार्ट है या मैं स्मार्ट हूँ? हम दोनों स्मार्ट नहीं है, वो स्मार्ट हो गए। बिल्कुल 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 सही है। मैं आई एम रेडी टू कंसीड। इसमें सर, इसमें एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है कि जब भी रिसेशन होता है या इस तरह की कोई चीज होती है जिसमें नौकरियां जाती हैं, तो ये देखा गया है, जैसे मैंने एमबीए कर बीबीए कर लिया है, बीकॉम कर लिया, नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी जा नहीं पाया, तो लोग साल वेस्ट करने के बदले हायर एजुकेशन में चले जाते हैं। तो इट एक्चुअली डील्स विद अ बूम इन हायर एजुकेशन व्हेन देयर आर लॉस ऑफ जॉब्स। हाँ, फॉर द यंगस्टर्स, यस। हाँ, तो अब सर इसमें देयर आर सम स्ट्रेसेस दैट आर कमिंग इन। हाँ, जैसे घर में यंग लोग हैं, तो कोरोना का एक पॉजिटिव चीज ये दिखता है कि जो बच्चे बहुत इररेस्पॉन्सिबल हो गए थे कि अगर मेरे फादर की हैसियत नहीं है, और इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि हम पेरेंट्स बताते नहीं है कि फाइनेंशियली हमारी क्या स्टेटस है या तकलीफें हैं बच्चों को। हाँ, तो वो बच्चे मोटरसाइकिल मांगते हैं या कुछ मांगते हैं अपने दोस्तों के प्रेशर में आके। अब उनको घर में रहने से समझ में आ गया कि घर में तकलीफ है। हाँ, तो दे माइट बिकम रेस्पॉन्सिबल। बट मैं बोल रहा हूँ कि जो स्ट्रेसेस हैं घर में, हाउ डू यू डील विथ इट? सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ये पहला जानना पड़ेगा, क्योंकि घर में बहुत सिंपल चीज है सर। आपको दाल रोटी के अलावा तो कुछ चाहिए नहीं। आप अगर नॉन वेजिटेरियन ईटर हो तो थोड़ा बहुत नॉन वेजिटेरियन, उसके अलावा तो आपकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखिएगा, हर बच्चे को देखिएगा, मैं उन बच्चों से पूछना भी चाहता हूँ, आप और मैं 3 शर्ट या 2 शर्ट में अपनी पूरी स्कूल की लाइफ निकाली है। एक कबोर्ड में होता था, एक धोने को गया होता था और एक पहन के घूमते थे। और जब पहना वाला धोने को जाता था तो कबोर्ड वाला बाहर निकलता था, और जब धोया हुआ वो वापस कबोर्ड में जाता था आयरन होके। और हम इस तरीके से हमारी लाइफ को निकाले हैं। आज बच्चों के कबोर्ड में जाके देखिए सर, बच्चे जब कबोर्ड को खोलते हैं, अगर कबोर्ड को मुंह होता तो रो लेता था, हाँ अच्छा हो गया तुमने मुझे खोला, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी चीजों को आपने दबा दबा के रखा है जिसकी यूसेज आपकी 5% भी नहीं है। तो आपने इतना सामान भर के क्यों रखा है? आप कितना पहन लेते हो? आप जो पहनते हो, जो टॉप 10 टी शर्ट्स है उसको पहनते हो, उसमें से भी अगर किसी टी शर्ट को या शर्ट को किसी लड़की ने अच्छा बोल दिया तो उसी को धो के 10 बार पहन। आप तो सर फिर भरते क्यों हो? मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि आप अननेसेसरी बाइंग हैबिट को क्यों लेके आते हो? आप अगर अननेसेसरी बाइंग हैबिट को अगर आप लेके आते हो, वही घर का स्ट्रेस होता है। अगर आप मिनिमलिस्टिक लाइफ जीना शुरू करेंगे और नॉलेज वाइज उसको एक्सेल करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बहुत कन्वीनियंट हो जाएगी। आज आप कर क्या रहे हो देखिएगा, घर में आप भले ही फिल्म देख रहे हो, आपने 50 फिल्म देखी, 100 फिल्म देखी, लेकिन इस फिल्म से सीखा क्या? आपने कुछ ना कुछ सीखा, कुछ ना कुछ तो अंदर गया। तो क्या हुआ? क्या आपका नॉलेज ही इंक्रीज हुआ ना? बाय एंड लार्ज आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई।
राइट? तो आप देखिए, आज का सुबह का मेरा कॉलम भी देखिए सर, मैंने एक मलयालम मूवी के ऊपर स्टोरी लिख दी। तो आप फिल्म देखो ना, मैं नकार ना कहता हूं, लेकिन हर फिल्म से कुछ सीखने की कोशिश करो। अगर आप सीखते जाओगे, हर बिकाजी के सेव से आप अगर कुछ सीखने को जाओगे तो आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती जाएगी। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप हर चीज से सीखने की कितनी तमन्ना रखते हो। वाह, क्या बात है। तो इवन दिस सिचुएशन में कुछ सीख सकते हैं आप। वेरी 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 वेल, वेरी वेल, वेरी वेल सेड सर। इनका एक एक बच्चे का सवाल है ये, यहाँ ये सिचुएशन ऐसा है कि बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनका कहना है। हाँ, तो एक्चुअली लोग बहुत खराब सिचुएशन से भी निकल के आए लेकिन अभी सुसाइड कर रहे हैं। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? My take on this that they are the weakest people on the world. Okay. Weakest people on the. अगर आप देखिएगा, पहली बात तो ये है कि हर बच्चा ये समझना चाहिए कि 84 लाख जीवित जंतु इस प्लेनेट पे है। उस 84 लाख जीवित जंतु के बीच में मनुष्य एक ही है जो अपने आप को बुरी स्थिति से वापस ला सकता है। बाकी एनिमल के पास वो इंटेलिजेंस नहीं है। बाकी एनिमल जरूर कोशिश करती है, एलिफेंट कोशिश करती है, सील कोशिश करती है, बहुत सारे एनिमल कोशिश जरूर करती है, लेकिन सक्सेसफुली सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस लाकर खड़े होने की जो क्षमता है वो इंसान के पास है। अगर आपका लाइफ इंसान के रूप में हुआ है तो आप उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके बजाय अगर आप सुसाइड करते हैं तो आपसे बड़ा बुजदिल कोई नहीं है, पॉइंट 1। एंड पॉइंट टू, आप मेरे कॉलम को रोज देख लीजिए सर, कहीं ना कहीं से मैं ऐसा स्टोरीज लेके आकर आपको देता हूं और आपको कह रहा हूं कि यार कल की टीचर, मैंने आज भी लिखा है जो कल छपेगी, एक डांसर जिसको मीरा कुमार जैसे लोकसभा स्पीकर ने अवार्ड दिया 2018 में, वो आज दाल चावल बेच रही है पूना के स्टोर पे, पूना के रोड स्टोर पे नहीं, रोड पे बेच रही है। तो उससे कुछ उसका नीचा हो गया क्या? नहीं, वो अपने आप को संभाल रही है। जिस दिन सिचुएशन नॉर्मल होगा वो अपने डांस प्रैक्टिसेस में वापस चले जाएगी। शी इज 51 ईयर ओल्ड। आप तो अभी भी 25 हो, 20 हो, 18 हो, आपको डर क्या है? जब 51 ईयर ओल्ड डांस क्यों, जो लोकसभा में जाकर या प्रेसिडेंट हाउस में जाकर अवार्ड लेकर आई है, वो अपनी चीजों को अगर बदल सकती है, आप में और हमको क्यों डरना चाहिए? हम हमारी रोल को क्यों नहीं बदल सकते? हम क्यों नहीं थोड़े देर के लिए अर्जुन बन नहीं सकते, थोड़े देर के लिए भीम बन नहीं सकते, जो अज्ञातवास में सब कुछ बदल दिया था? क्या बात है सर, बहुत सही है, एकदम सही है। मैं भी इसीलिए आज भी चाय बनाता हूँ सर, मेरे को लगता है कि बाद में काम आ जाएगा। हाँ, चाय बना सर, बिल्कुल काम आएगा। क्या मालूम सर, अपन दोनों मिलकर पार्टनर बनाकर चाय का दुकान भी लगा देंगे कहीं। आप बीका जी लीजिए, मैं चाय लाता हूँ। ओके सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल अभी भी है, जैसे कॉर्पोरेट्स की हालत खराब है, गवर्नमेंट्स डोंट हैव फंड्स, टैक्स कलेक्शन इज नील ऑलमोस्ट, तो देयर इज ए क्रंच एवरीवेयर। तो आपको लगता है कि जॉब्स का सीन आज से 6 महीने बाद क्या रहेगा इन यूथ के लिए? सर, अब इससे नीचे तो नहीं जा सकता। ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन द वर्स्ट नाउ। यस। अब इस महीने की जीएसटी कलेक्शन को अगर आप देखोगे, जून की जीएसटी कलेक्शन को, इट हैज इम्प्रूव। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक स्टेट लेता हूं, मैं आज केरला और कर्नाटका के बारे में पढ़ रहा था। तो केरला लास्ट जून को 1590 करोड़ का कलेक्शन किया है, 1590, और इस साल के जून महीने में उन लोगों ने 1530 का किया है। तो इसका मतलब दे आर क्लोजर टू द फिगर। कर्नाटका ऑल्सो कमिंग क्लोजर टू द सेम एरिया। हो सकता है प्लेसेस लाइक दिल्ली, महाराष्ट्र, जहां पे कोरोना वायरस की बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है, वहां पे बिजनेस जनरेट नहीं हुआ और उसके वजह से उनकी फिगर्स कम हो, और लार्ज कंट्रीब्यूटिंग स्टेट की वजह से अपने को नजर आ रहा है। लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकता साहब, इससे ऊपर ही आना पड़ेगा। तो अभी से नौकरी की ऑप्शंस आएगी, लेकिन डिफरेंट अवतार में आएगी।
वो जो डिफरेंट अवतार है। अब मैं आपको एकदम एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे लोग हैं तो मैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए मैं एक फ्यूचर स्टोरी देना चाहता हूँ सर। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए सर। आप डेंटल इंश्योरेंस करने के लिए एक दुकान पे गए, मींस एक इंश्योरेंस कंपनी के, और वो डेंटल इंश्योरेंस वाले ने आपको इंश्योरेंस देने से इनकार कर दिया ये बोलकर कि आप दांत बराबर नहीं घसते, तो आप एक ही बार आप ब्रश करते हो। अब मेरे को बताइए, इंश्योरेंस वाले को आप एक बार ब्रश करते हो ये खबर लगी कहां से? लगी। अब हम जाते हैं अपने घर में, अपने घर में कुछ बच्चे लोग इंटरनेट एनेबल्ड टूथब्रशेस खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट एनेबल्ड टूथब्रश उनको मदद करता है ये बोलने में कि वो कितनी बार पीछे डालते हैं, कितनी बार ऊपर नीचे करते हैं, कितनी बार इस तरफ करते हैं, उस तरफ करते हैं, इसको गिनकर आपको दे देता है वो टूथब्रश। जब टूथब्रश इंटरनेट एनेबल्ड होता है और वो आपको एक डेटा पेश करता है, तो उस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करता होगा। तो ऑब्वियसली उस स्टोर्ड एरिया में से इस इंश्योरेंस कंपनी ने चोरी किया है या खरीदा है और आपके खिलाफ उसको यूज किया है। इसी तरीके से आपके घर में आज अलेक्सा बैठी हुई है। अलेक्सा आपके और आपके मिसेस के बीच में या आपके माता पिता के बीच में जो झगड़ा होता है उसको भी तो रिकॉर्ड कर रही है। खुदा ना खास्ता हमको डिवोर्स ना हो, लेकिन डिवोर्स हो गया तो हो सकता है कल का कोर्ट आपके अलेक्सा को लेकर आकर उस रिकॉर्डिंग को देखेगा, क्योंकि आप दोनों झूठ बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल। अलेक्सा, अब आप देखिएगा फ्यूचरिस्टिक वे ऑफ लाइफ को देखिएगा, आप डर जाओगे फ्यूचरिस्टिक। मैं सोच रहा हूं कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में आप कुछ भी चीज को छुपा नहीं सकेंगे। फ्यूचर में वही आदमी अपना लाइफ गुजार पाएगा जो आदमी हॉनेस्ट हो, जो आदमी ट्रांसपेरेंट हो, जो आदमी सीधा साधा अपनी लाइफ को गुजारना चाहता हो। आज तक आपको और मुझे कौन पकड़ता था? जब अपन ट्रैफिक सिग्नल होते थे या किसी के ऊपर एक्सीडेंट कर देते थे तो ट्रैफिक का जो कैमरा है वो पकड़ता था। आज क्या हो गया सर? आपके पास एक ऐप है कॉल्ड हेल्थ ऐप। वो आप किधर गए, कौन से हॉस्पिटल गए, कैसे आपकी बीमारी है, मींस आपके ऊपर जो सर्वेलेंस है वो आपके स्किन के नीचे भी चला गया। पहले स्किन के ऊपर था, अभी स्किन के नीचे चला गया। तो आपकी जो फ्यूचर है वो सर बिग डेटा, एनालिसिस, बायोलॉजी, इन चीजों में बहुत ऑप्शंस आने वाले हैं। मैं आपको एकदम फ्यूचरिस्टिक एक आइडिया देता हूं सर। पहले हमारे जमाने में पीसीओ खोलकर एक आदमी बैठता था। हम बिठाते थे उसको। आने वाले समय में नेटवर्क हेल्थ केयर का पीसीओ बनेगा, यानी कि आप पीसीओ खोलकर बैठोगे, उस पे एक कंप्यूटर रहेगा, उसमें जो डॉक्टर आज खाली है उसका फोटो दिखता रहेगा। जब उसके अंदर आप जाओगे, आप एक गांव में रहते हो, आप उस पीसीओ के अंदर घुसोगे और आप जो डॉक्टर को मिलना चाहते हैं उसका नाम बटन दबाओगे, वो खाली होगा तो वो आपके सामने में प्रकट होगा। वो आपको पूछेगा, आपके साथ कंसल्टेंसी होगी, आपकी जो हेल्थ केयर की जो क्वेश्चंस है आप बिना रायपुर गए बिलासपुर में बैठकर या और कोई जगह में बैठकर आप ऑटोमेटिकली उसके साथ कंसल्टेंसी कर सकते हो। पीसीओ का अपना धंधा चला, डॉक्टर का जो खाली टाइम था वो बिक गया, आपको जो जिस डॉक्टर से मिलना था वो फुलफिल हो गया। टेक्नोलॉजी ने आप तीनों को कनेक्ट कर दिया, तीनों की दुकान चल पड़ी। क्या ये होगा? नहीं होगा, ये 100% होगा 100% होने वाला है। तो आप मेरे को बताइए, अपॉर्चुनिटीज क्या कम है? अपॉर्चुनिटीज बहुत है सर, लेकिन सोचने की प्रक्रिया को बदलना पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि मैं आरबीआई में काम करूंगा, मैं कोई इधर कैश काउंटर के। सर बैंक बंद हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद तो, क्योंकि तरीके से क्रेडिट कार्ड यूज हो रहे हैं इस कोविड में कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस ऑन कार्ड्स। अब कैश की जरूरत क्या पड़ेगी बताइए आप मेरे को? सब्जी वाला कार्ड ले रहा है, पानी पूरी वाला कार्ड ले रहा है, सब आदमी कार्ड लेना शुरू कर दिया। तो आपको जरूरत एक्चुअली कैश की, तो अगर कैश की जरूरत नहीं है तो बैंक की जरूरत क्या है?
ये दिन भी आएंगे, बिल्कुल सही, आएंगे। हाँ, और अपना टाइम आएगा सर, अपना भी टाइम। और जवाहर साहब, आपके साथ मैंने 2 साल पहले बात किया था, तो मैंने कहा था कि एजुकेशन आज तक सबको बुला कर पढ़ाता है। ऐसा दिन आएगा जब एजुकेशन सब घर में जाएगा। ये मैंने आपको मजाक बताया। तो लोगों ने मुझे ये भी बोला था, सर अमेरिका में नहीं आया तो कैसे इंडिया में आएगा? सर 2000 के कोरोना वायरस ने अमेरिका, इंडिया सबको घर में जाने के लिए मजबूर कर दिया, याद रखिएगा। ठीक है सर, इसमें ना एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर, वी आर ओनली 6 मिनट शॉर्ट। सो जैसे सर देयर इज ये हो गया, ऑनलाइन हो रहा है अभी सब चीज, एजुकेशन हो रहा है, तो कुछ पेरेंट्स जाके गवर्नमेंट को कंप्लेंट करते हैं कि भाई ये ऑनलाइन क्या चल रहा है, मेरे बच्चों की आंख खराब हो रही है। तो कुछ गवर्नमेंट्स ने डिक्टेट्स निकाले, महाराष्ट्र ने निकाला कि 5th तक ऑनलाइन नहीं हो सकता, कर्नाटका निकाला कि 2nd तक नहीं हो सकता, छत्तीसगढ़ ने बोला ऑनलाइन करो पैसा मत लो। हाँ, तो अलग अलग गवर्नमेंट्स अलग अलग ऑर्डर निकालती है, इसमें एक रूपता होनी चाहिए या कोई पॉलिसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? सर ये तो गवर्नमेंट जाने की क्या पॉलिसी करना चाहिए, अपने अपनी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से जो सूट होता है उन लोगों ने अपने रीजंस की वजह से किया है। लेकिन मेरा मानना एक है सर कि मैं एक पेरेंट भी हूं, मैं एक टीचर भी हूं। मैं तो कहता हूं सर, 1 साल तो गैप ले लो, गैप ईयर बना डालो। गैप ईयर बना डालने से या 6 महीना गैप ईयर बनने से या 3 महीना गैप ईयर बनने से कोई नुकसान नहीं होता। आप लाइफ स्किल्स को पढ़ाइए ना सर, लाइफ स्किल्स को। सर लाइफ में सीखने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि हर चीज को आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ नहीं सकते। पेरेंट और टीचर एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना ले जहां पे लाइफ स्किल्स को पढ़ाया जाए। अब अमेरिका में होती है, कोई स्विमिंग सिखाता है, कोई शॉप करके एक स्कूटर को ओपन करके उस स्कूटर को वापस रीअसेंबल करने के लिए कहा जाता है। और आप बुरा ना मानिए सर, हमारे यहाँ जितने लोग कार खरीदते हैं उनमें से 99% को पूछ के देखिए सर, टायर बदलना आता है क्या? नहीं आता है उनको। अगर टायर ही बदलना आता है तो कार क्यों खरीदते भाई? कार क्यों खरीदते आप? तो हमें वो जो लाइफ स्किल्स चाहिए, क्योंकि वो चीप मिल जाता है। एक पंचर वाले का नंबर पत्थर के ऊपर लिखा हुआ दिख जाता है अपने को, अपन उसको देखकर फोन करते हैं और एक वो टूटी फूटी स्कूटर में ड्र करके आपके सामने में आगे खड़ा हो जाता है। हर हाईवे में ये होता है, ये हर हाईवे का शान है। लेकिन हर हाईवे में मुझे बताइए एक ट्रैवलर अपना खुद का टायर को बदली करके आगे बढ़ा है? ये कहानी भारत में मात्र 2% होगा या 1% होगा। तो हमें लाइफ स्किल पढ़ाने की अभी जरूरत है, और लाइफ स्किल पढ़ाने से आदमी आगे बढ़ता है। हर चीज थियोरेटिकल होने की जरूरत नहीं है। और पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? पेरेंट्स समझते हैं कि फीस तो सब चीज स्कूल का जिम्मेदारी, कॉलेज का जिम्मेदारी। नहीं भाई साहब, वो स्कूल में या कॉलेज में 8 घंटा या 6 घंटा रहता है, बाकी जो 16 घंटा है वो आपके साथ रहता है। आप नहीं पढ़ाओगे तो कौन पढ़ाएगा? तो जिम्मेदारी सबके ऊपर शेयर होती है। स्कूल के ऊपर भी शेयर होती है, पेरेंट्स के ऊपर भी शेयर होती है, समाज के ऊपर भी शेयर होती है। और मैं एक जरूर एक चीज में क्योंकि मिनट कम है तो मैं बोलना चाहूंगा। एज ए सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यंगर जनरेशन जब कुछ चीज गलत करता है तो उसको ठोकना। आज अगर मैं आपके लड़के को ठोक दिया, यार तू ऐसा क्यों कर रहा है, मैं आपके पिताजी को बोल दूंगा, तो उसका पिताजी 4 लोगों को लेके आके मुझे पीटना शुरू कर देता है। तुम कौन होते हो उसको बोलने वाले? तो समाज को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जमाने में डर लगता था कि पिताजी का दोस्त ने अगर हमको देख लिया गलत करते हुए तो जाके पिताजी को बोल देगा। आज वो डर ही नहीं है। हकीकत है, एकदम हकीकत है। हाँ। तो मेरे ख्याल से तीनों लोग साथ में आना चाहिए, इंस्टीट्यूशन, टीचर एंड पेरेंट्स एज अ सोसाइटी, एंड दैट सोसाइटी हैज टू डू वेल फॉर द स्टूडेंट्स। सर द फाइनल टेक अवे कि तीनों को साथ में आना चाहिए फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। उसके साथ आई थिंक विल क्लोज। नमस्कार रघुरामन साहब, आपने 1 घंटा हमारी मास्टर क्लास ले ली।
हाँ, और बच्चों को बहुत फायदा है इससे मस्ती मस्ती में 1 घंटा निकल गया सर, पता नहीं चला. एंड वी हैव अ लॉट मेनी क्वेश्चंस, एंड यू हैव टेकन अ लॉट मेनी क्वेश्चंस. So I think they have had their full. Thank you very much for coming in and kick-starting the Rungta Leadership Talk Series. आप पहले हैं. Tomorrow we have another guest. आप log in करिएगा at 11 o'clock tomorrow. But thank you very much, sir, again. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. चलिए. The webinar link, the feedback link is shared in the WhatsApp group and the public section. Please fill the WhatsApp. Please fill the link. Please fill in the link.